دریائے سندھ کے سیلاب ڈیرہ غازی خان اور کوٹلو کے درجنوں دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ رابطہ سڑکیں زیر آب آنے سے نشیبی دریائی بستیوں کے مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ڈی جی خان انتظامیہ کے مطابق 7,000 افراد پانی میں پھنس گئے۔ بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج ٹھاٹھے مارنے لگا۔ 5 حفاظتی بند لہروں کی نذر ہو گئے۔ فصلیں سیراب، پانی آبادی میں داخل، زمینی رابطے منقطع۔ ڈیرہ بکھا میں بھی حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ منگوانی والا سے زمینی راستہ منقطع۔ چک بھٹیاں، ماڑی میاں صاحب، آکوکا میں پانی داخل، مکینوں کی امداد کے لیے دہائیاں۔ اودو قائم پور میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ، مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ بہاول پور کے مقام پر بیٹ میں فصلیں سیراب، پورے بالا کے مقام پر ساہو کا، جملیرا کے پرانے بیٹ میں پانی داخل۔ ڈی سی بہاول نگر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک۔ ذوالفقار علی کا سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ، ریلیف کیمپس، پینے کے پانی اور دیگر سہولیات کا معائنہ، جان و مال کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے حوالے سے انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ متعلقہ سرکاری محکمہ جات کو ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہائی الرٹ کرنے کے احکامات۔ جہانگیر ترین نے سیلاب متاثرین کی مالی امداد کا بیڑا اٹھا لیا۔ ٹیم باجوڑ، بنیر اور سوات روانہ۔ نقصانات کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ متاثرین میں راشن، خیمے، ادویات تقسیم کی جائیں گی۔ کہتے ہیں مشکل گھڑی میں متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بارش سے ملتان کے علاقہ شالیمار کالونی میں کراؤن فیلئر، سیوریج لائن بیٹھنے سے واسا کی گاڑی دھنس گئی۔ کروڑوں روپے کی واٹر سکر گاڑی جاپان سے منگوائی گئی تھی۔ سرگودا میں بارش نے انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ 3 گھنٹے سے بند بارش کے باوجود سڑکوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ مرکزی شاہراہیں بارشی پانی میں ڈوب گئی۔ ادھر بارش کے بعد کمشنر میدان میں نکل آئے، مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر بھی ہمراہ تھے۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے سرگرمیوں کا معائنہ۔ ہارون آباد میں بارشوں سے کپاس کی فصل تباہ۔ بپھرے سیم نالوں نے کسانوں کی کمر توڑ دی۔ کپاس پر پہلے ہی بیماریاں حملہ آور تھیں۔ بارش نے مزید نقصان پہنچایا۔ زرعی ٹیکس آبیانہ معاف کیا جائے، کاشتکاروں کی اپیل۔ چینی کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، ذخیرہ اندوزی جاری۔ انتظامیہ لگام ڈالنے میں بری طرح ناکام۔ غلہ منڈی ملتان میں چینی 180 روپے کلو فروخت۔ بازار میں چینی بدستور 200 روپے کلو ہے، شہری پریشان۔ بہاولپور میں بھی چینی نایاب ہو گئی۔ چینی جیسے ایک ہفتہ پہلے 173 پہ ریٹ تھا، تو دکاندار ہمیں 1 کلو یا 2 کلو دیتا تھا، مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس چینی کی شارٹیج ہے۔ لیکن اب بھی وہ جو چینی 175 پہ ہمیں مل رہی ہے کنٹرول ریٹ پہ، تو وہ ہمیں وافر مقدار میں مل رہی ہے، مطلب کہ جتنی بھی چاہے ہم لے سکتے ہیں۔ 3 سے 4 دن سے چکر لگا رہا ہوں بہاڑی کے کرانہ سٹورز پر، لیکن مجھے چینی نہیں مل رہی ہے۔ دکاندار کی طرف سے یہی کہہ کے انکار کیا جاتا ہے کہ چینی دستیاب نہیں ہے سرکاری ریٹ پر۔ تو میں بہاڑی کی انتظامیہ اور حکومت پنجاب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری یہ چینی کی جو درخواست ہے اس کو سہولت کو اس کو مہیا کیا جائے، اور یہ یہاں پر جنرل سٹورز پر یہاں پہ ہمیں موجود کی جائے۔ بہاڑی کے شہری چینی کے حصول کے لیے دربدر۔ دکانوں پر 173 روپے کلو ریٹ کی تختیاں آویزاں، مگر چینی دستیاب نہیں۔ چینی خریدنے کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں، شہری پھٹ پڑے۔ ادھر رحیم یار خان انتظامیہ کا چینی بحران پر قابو پانے کا دعویٰ۔ دوسری جانب سرگودا میں چینی بحران پر قابو پانے کے لیے ضلعی حکومت نے پوائنٹس بنا دیے۔ ہر دکاندار کو 50 کلو چینی کا ایک تھیلا دیا جا رہا ہے۔
3 दिन से मैं चीनी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जिस बाज़ार में आता हूँ तो वो बात होती है दुकानदार से, तो वो कहता है जी 1 गट्टू मिलता है और वो पता ही नहीं लगता है कहाँ जाता है, और 3 दिन से बिल्कुल चीनी अवेल नहीं हो सकी। और इसी तरह हमारे यहाँ एक सुपर माल है सरगोदा में, वो 7,000 की शॉपिंग पे 1 किलो चीनी दे रहा है, तो गरीब बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है। शुगर के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा, बहावर विक्टोरिया अस्पताल में इंसुलिन की कमी, कई माह से इंसुलिन की अदम दस्तियाबी पर ओपीडी के बाहर एहतजाज। मुस्तारीन का कहना था 3 माह बाद 1 यूनिट इंसुलिन भी नहीं मिल रही। ये जी तकरीबन अरसा 1 साल होने वाला है। ये 2.5 महीने के बाद 3 महीने के बाद एक इंसुलिन मिलती है, और 50 लोगों के लिए वो भी टरखा देते हैं, 3-3.5 महीने पे लेके जाते हैं। अब ये देखें आपके सामने ओल्ड सिटीजन का इज्जत देख लें, धक्के खा रहे हैं, हमें बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, बुनियादी हकूक से हम महरूम हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदारा रहम किया जाए बुज़ुर्गों पे, कम अज़ कम जो ओल्ड सिटीजन हैं उनके लिए तो कुछ आप ख्याल करें, उनका तो ख्याल करें। आज नहीं आना जी, कल 15 दिन बाद आना है, उस दिन आओ, नहीं आज ख़त्म हो गया, आज नहीं है, फिर आना, सिर्फ चक्कर ही लगवाते हैं, कुछ शय नहीं मिलती। अब्दुल्ला मंडी मुल्तान में बिजली की तारें लटकने लगी, 5 रोज से हाई वोल्टेज तारें रोड के दरमियान लटक रही हैं। किसी वक्त कोई भी सानिया पेश आ सकता है। बारिश के दौरान खतरा मजीद बढ़ जाता है। ताजरों ने इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। तजावुजात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स की कार्रवाइयां। मुल्तान के तारीखी हुसैन आगाही बाजार में बड़ा ऑपरेशन। दहाइयों बाद हुसैन आगाही बाजार तजावुजात से पाक, तंग गलियां कुशादा हो गईं। आमदोरफ्त बहाल होने से शहरी खुश नजर आए। निस्तर अस्पताल के बाहर तजावुजात माफिया ना हटाया जा सका। अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर रेहड़ीबानों का कब्जा, पैदल चलने वालों के लिए दुश्वारी का सामना। इंतजामिया फिलफोर अस्पताल के बाहर से तजावुजात हटाए, शहरियों का मुतालबा। फतेहपुर में MM रोड, सर्विस रोड्स पर तजावुजात की भरमार, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, खरीदारी के लिए आने वाले शहरी अजियत में मुब्तला। इंतजामिया से तजावुजात के खात्मे की अपील। मुल्तान में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को फंड्स और स्टाफ की कमी का सामना। अमला न होने के बाद केसेस महीनों से पेंडिंग। क्लेम्स की अदम अदायगी से शहरियों में बेचैनी बढ़ गई। रीजनल डायरेक्टर अबू सर गिलानी के मुताबिक 5,500 से 6,000 केसेस फंड की कमी के बायस रुके हैं। DPO मुजफ्फरगढ़ ने रंगपुर में खुली कचहरी लगा ली। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए। शहरियों को फौरी इंसाफ की दहलीज पर फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। उधर मुल्तान में भी रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी की खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर हल के अहकामात दिए। नहरी पानी चोरी के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। लोधरा में महकमा अनहार के दफ्तर में नारेबाजी। 4 मुजाजात पानी चोरी से मुतासिर हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था 12 निशानदही के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने मोगे तोड़वा रखे हैं। SDO वगैरह और ओवरसियर वगैरह ने, पटवारियों ने मिलकर पैसे लिए हैं कि हम तारें भी नहीं होने देंगे। टहल बिल्कुल निल जा रही है। गुज़श्ता दिनों हम जुम्मे वाले दिन DCO साहबा के पेश हुए। उन्होंने एक्शन साहब को बुला के हिदायत की। एक्शन साहब ने हमें मुतमिन किया, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन चली, उसके बाद दिन में टूपें लग गई, जो कि हमने अपनी मदद आपके तहत उठाई, लेकिन आज तक हमारा इंसाफ ना मिला और ना ही उसका एक्शन लिया गया। PP सासी मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन। अली हैदर नूर न्यासी को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। 5 उम्मीदवारों ने टिकट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दी थी। इनामुल्ला, आदिल अब्दुल्ला, अमीर आफ्ताब न्यासी और शहरबानो भी टिकट की उम्मीदवार थी। मुल्तान में मरकजी मिलाद काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम उलमा और मशाइख कन्वेंशन मुनक्किद। सदारत अल्लामा मज़हर सईद कासमी ने की नामवर उलमा कराम का खिताब। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस रूट्स पर खसूसी इक़दामात कर रहे हैं।
मुल्तान में गैर कानूनी बिलबोर्ड्स का सर्वे मुकम्मल। डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग PHA जलालुद्दीन कहते हैं गैर कानूनी बिलबोर्ड्स के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। चारों टाउन्स में ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। हमारा एक एनुअल सर्वे होता है जो मुख्तलिफ टाउन्स में होता है और साइट इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग जो है उस सर्वे को तकरीबन 1 माह की मुद्दत में मुकम्मल करते हैं। उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली हमने, सर्वे हमारा मुकम्मल है। और नेक्स्ट मरला जैसे कि आपने फरमाया है कि हम एक टीम तश्कील देते हैं जो इन्फोर्समेंट टीम है, वो उस सर्वे के बाद जो गैर कानूनी बोर्ड हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हमारे पास, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का एक पूरा एक अमल है, अब उस रिकॉर्ड में चेक करते हैं, हमारी टीम फील्ड में मॉनिटर करती है। अगर वो गैर कानूनी बोर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर बोर्ड होगा तो उसे फौरी रिमूव कर दिया जाएगा। लाइसेंस बनवाने के लिए बहावल नगर जाने की जरूरत नहीं। डाहरावाला में खिदमत सेंटर में लाइसेंस बनाने के लिए गाड़ी मौजूद। शहरी 14 अक़साम की दस्तावेजात हासिल कर सकते हैं। गाड़ी पीर और मंगल के रोज खिदमत सेंटर में मौजूद होती है। लोधरा में पंजाब पुलिस के तरक्की पाने वाले अफसरान के एहसास में तकरीब। DPO ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर्स बनने वाले 2 एहलकारों को प्रमोशन बैचेस लगाए। अली बिन तारिक का कहना है कि महकमे पुलिस में तरक्की नई जिम्मेदारियों का आगाज है। स्पेशल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन मगसी का दौरा बहावलपुर। किसानों की सहूलत के लिए एग्री मॉल के तामीराती काम का जायजा। इमारत 23 अगस्त को ग्रीन एग्री मॉल कंपनी के हवाले की जाएगी। कपास की फसल के हवाले से महकमा ज़राअत के अफसरों की ब्रीफिंग। महकमे माहौलियात का स्कूलों को साफ रखने का अज़्म। मुल्तान में तमाम स्कूलों के बाहर 3 रंगों के कचरे के डब्बे रखने की हिदायत। सब्ज डब्बे में फूड वेस्ट, नीला डब्बा प्लास्टिक, पेपर और मेटल अशिया के लिए मखसूस। तालीमी इदारों को स्कूल खुलने से पहले डब्बे लगाने की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त नागुज़ीर। महकमा जंगलात मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इक़दाम। दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे पर नया जंगल कायम। 1500 एकड़ रकबे पर 18 लाख पौधे लगाए गए। कीकर, शीशम, बेर समेत मकामी अक़साम के पौधे शामिल। पेपर अच्छे हों या बुरे, नताइज से सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। तालीमी बोर्ड मुल्तान जमात नहम के इम्तिहान के नताइज का कल करेगा ऐलान। रिजल्ट ऑनलाइन होगा। रिजल्ट गैसेट और बसरिया SMS मालूम किए जा सकेंगे। मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान में स्पोर्ट्स गाला इवेंट 1 हफ्ता जारी रहेगा। तमाम क्लासेस हिस्सा लेंगी। प्रिंसिपल बिलाल सईद कहते हैं शाम के वक्त इंडोर और आउटडोर मुकाबले होंगे। BZU मुल्तान ने BS प्रोग्राम्स के दाखिलों की तारीख में तौसी कर दी। प्रोग्राम्स की सेकंड फेज में अप्लाई की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त तक कर दी। तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तान में कैम्ब्रिज O लेवल 2025 के नताइज का ऐलान। रिजल्ट आने पर स्कूल्स के तलबा में गहमा गहमी। कुछ तलबा खुश तो कुछ कम ग्रेड्स पर मायूस दिखाई दिए। तलबा नताइज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की सरकारी वेबसाइट से भी मालूम कर सकते हैं। ये नज़ारे कितने प्यारे। जनूबी पंजाब का दूसरा मरी चांपुर का इलाका कोमाड़ी। दिलकश मौसम, हसीन नज़ारे, सियाहों की तवज्जो का मरकज। पहाड़ों की चोटियों पर दरख्त, हरियाली ने सियाहों का दिल मोह लिया। पहाड़ों से फूटते चश्मे खूबसूरती को बढ़ाने लगे।